नमस्कार। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति शांति। उसका साउंड तो कोई यूज है क्या? ठीक है। ठीक है। Okay. Okay. I think everybody is okay for English. And so maybe if it is needed, I will speak in Hindi also. So you understand English? What I speak? You can correlate with this thing and sign language also. Okay. So what is Jivananda? पुराने लोग बताइए जीवानंद क्या है? You know what is Jivananda? In your country, have you heard of Jivananda? There's Jiva group is practicing Jivananda. अच्छा, what is Jiva or Jivan? जीवन क्या है? जीव। हाँ, जीवन में यानी प्राण। ये वाला जो जीव है यह सिर्फ प्राण तक है कि इससे कुछ और ऊपर है? पैर आप इस पर रखें, आप खींच लीजिए। हाँ, उसका आनंद से जुड़ा हुआ है। हाँ, आनंद से जुड़ा हुआ है। so they say jiva means life. So is it only आनंद? तो आगे लिखा हुआ ही है। अगर आनंद जीव लिखते हैं, जीवा, यहाँ पर ब्रांड है जीवा। जीवा is the name of the organization. Jiva is the name of the hospital. जीवा ग्राम, जीवा आयुर्वेदा। Okay. So जीवा. So जीवा means life actually commonly, जीवन। और क्या है इसके आगे? आनंद है। तो जीवन क्या है? सिर्फ शरीर है कि मन है कि आत्मा है, तीनों? आत्मा तीनों सबसे बड़ा है। बड़ा है और छोटा कैसे समझे मैं? अल्टीमेटली वही एग्जिस्ट करता है, बाकी चीज तो छोड़ जाते हैं। शरीर छोड़ देंगे तो आत्मा कहाँ रहेगा? आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे अंदर में है। तो अंदर तो आत्मा है। आत्मा और परमात्मा की जमीन है। I ask, Atma, you know, soul, consciousness. So the Jiva is three parts: body, mind, soul. Okay? So is it all together or any one of them? Life? All three? Or one? Or all three? Body, mind and soul. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। अब बड़ा छोटा का कैसे? इन्होंने जो बोला उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? What is your opinion about? Soul is more and mind is less or body is less. Mind is not less. She has said a very important thing. But you try to analyze. Mind and body is alike. Atma is soul is a truth. Fact is like ultimately soul exists and as she said. Ultimately, soul exists. Combination of all three. Combination of all three is life, and we don't know what is more, what is less. Of course, the life as per the levels of consciousness
in the Panch Koshas. Okay, so this is the Panch Koshas. Okay, so the Panch Koshas. आपको इधर आ जाइए, लेकिन फैन बंद कर लीजिए कोई। हाँ दादा, कैन यू प्लीज पुट ऑफ द फैन पीछे से, वो सबसे ऊपर का स्विच, आप बैठ जाओ। ओके, तो as per the level of consciousness, we see there are 5 levels of consciousness known as Panch Koshas. 5 कोश के बारे में पता है? ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो दिखेगा। जी, the Panch Koshas यहाँ लिखा है, you can all read। क्या क्या लिखा है? What is it? अन्नमय कोश, अन्नमय कोश है ना, अन्नमय कोश। उसके बाद नीचे क्या है? उसके नीचे प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय और राधे राधे, फिर मनोमय और राधे राधे, हाँ, विज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है? Have you heard of these names? No, किसने किसने सुना है पंचकोश का नाम? You don't know. You have heard Panchkosh? 5 levels of the mind. Have you heard? Have you read psychology? Sigmund Freud. Yes. कोई पढ़े हैं Sigmund Freud को? For very short period. Anyone? Psychology में कुछ पढ़े हैं? Id, ego, super ego. You know id, ego, super ego? No. चलो ठीक है। 3 levels of consciousness is very common. Conscious, subconscious, superconscious, है ना? ये तो सब जानते हैं। एक चेतन है, अर्ध चेतन और अवचेतन। Okay? So superconscious starts from here. This one, विज्ञान में और आनंद में। This is superconscious. विज्ञान में और आनंद में, if scientist is born, we cannot make scientists. फिलोसफर, साइंटिस्ट, ये सब जो है ना वैज्ञानिक, क्या हुआ? ठीक है ना? एक तो बोलो अभी उपाय करते हैं। सर दर्द हो रहा है? नहीं। हाँ? नहीं। पंखा तो नहीं चाहिए? नहीं। Okay, so scientist means who are scientists? Who is a scientist? हाँ, okay. आप बताओ। Can economists be a scientist? सोच के बोलो। हाँ? Economics is a science. Very good. Economics is a science. Good one. How economics is related to the modern science or any science? It has laws. Like science, it has laws. But economics is related to philosophy also. So is philosophy science? It's like combination of science and social studies. Okay. तो आप लोग बताइए, विज्ञान जो वैज्ञानिक का जो होता है और जो अर्थशास्त्र होता है, वो दोनों में कुछ है? आप बोलिए कोई भी। इन्होंने बोला इकोनॉमिक साइंस होता है, अर्थशास्त्र जो है, पैसा कैसे चलता है दुनिया में, वो विज्ञान है, साइंस है। आप लोग कितने लोग मानते हैं इस बात? यू अग्री? यू अग्री इकोनॉमिक्स, द मनी मैटर इज अ साइंस? यू अंडरस्टैंड? Okay, you agree? Yes, no. Economics is science. Yeah. Okay, good, very nice. देखिए अब थोड़ा सा इसमें आते हैं, इसके ऊपर। Economics means ecological dynamics. यह प्रकृति जो पंच महाभूत है, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। 5 layers, okay? Conscious, subconscious and superconscious, ये 3 है। That is supramental, subliminal and causal settlement. Okay, and this is one. यहाँ थोड़ा elaborate है. This is अन्नमय कोश, this is प्राणमय और काममय कोश. Okay, and this is मनोमय and this is विज्ञानमय combined with अतिमानस. That is beyond the consciousness. आपकी चेतना, अभी आप मेरे से सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं. Okay. Can you sing any line in this thing, Polish?
Any line in Polish? Can you speak? Any means any line in Polish? Live? Any word in Polish? Any sentence? Speak any sentence in Polish. Sentence Polish? Yeah, any sentence, one sentence. Polska to piękny kraj. Okay. Anyone? कोई समझा? Anybody understood? Okay. I'll speak one line in Tamil. Vetri peruvum urnal. कोई समझा? तमिल जानते हैं कोई यहाँ? हाँ? तो language is the state when you hear. Okay. You hear, but you don't understand if it is not having a music. Now I'll sing this. ये वेट्री पेरुवम उरनाल एक संगीत है, एक बहुत ही पॉपुलर संगीत है। आप लोग इसको सुने होंगे। इसके धुन को आप लोग हिंदी में और इंग्लिश में और कई भाषाओं में गाया जाता है। वेट्री पेरुवम उरनाल नार नंबिकै उरन वेट्री पेरुवम उरनाल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, सब गाइए। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, we do believe we shall overcome someday. पंजाबी में आता है ये गाना? पंजाबी में? पंजाबी में आती है? हाँ, बंगाली में? बंगाली हमरा होगो कामयाब, हमरा होगो कामयाब, हमरा होगो कामयाब एक दिन। ओ मनेर आछे विश्वास, हमरा आछे विश्वास, हमरा होगो कामयाब एक दिन। कश्मीरी इस गत सब कामयाब, इस गत सब कामयाब, इस गत सब कामयाब एक दुहन। मित्सु बारो सही, पूरो बारो सही, इस गत सब कामयाब एक दुहन। पंजाबी में आता है ये लाइन, तो सुने होंगे आप लोग। तो ये जो लाइन हमने तमिल में बोला था, वेट्री पेरुवम उरनाल, नंबी के उरन उरनाल, ये नहीं समझ में आया। लेकिन जब हमने गाया तो आपने पकड़ा, आप लोगों को भी लगा होगा कि सुना हुआ। So what you hear in the music song is not boring, because it is विज्ञानमय कोश या creativity. Anything which is with art, music, dance is making you bliss, happy. You understand? The song, if you sing now, can you sing any line in Polish? कोई Polish में कोई आप ये सुन सकते? Any line in Polish can you sing? हाँ yeah, yes. Any line in Polish? Wait. Any line, just ठीक है, आ जाएगा। Any line in Polish? See, आप लोगों को भी गाना, हाँ? Any line in Polish? Sing, yeah? Yeah, sing. Oh my God. Anyone, any line, your school days. Kiedy w piątek słońce świeci, serce mi do góry wzlata, że w sobotę wezmę plecak w podróż do mojego świata, bo ja mam tylko jeden świat, słońce, góry, pola, wiatr i nic mnie więcej nie obchodzi, bom turystą się urodził. Very good, very good. See, you are singing. अभी देखिए, उन्होंने जब बोला था तो कुछ मजा नहीं आया, समझे नहीं। We all don't understand but we enjoy. Why? Because that is the science of art. Art is beyond consciousness. वो आपकी बुद्धि से ऊपर होता है। कला जो होता है बुद्धि से ऊपर होता है।
इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे कलाकार खूब पढ़े लिखे IIT से भी पढ़े हुए लोग भी जब आर्टिस्ट बने हैं तो उनकी उसकी कोई पढ़ाई की वैल्यू नहीं। और मेरे साथ भी हुआ, मैंने जो BSc में पढ़ाई किया और जब मैं आचार्य बनने गया तो मेरी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं था। मुझे पूरा फिर से संस्कृत पढ़ना पड़ा, फिर वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, फिर वो योग का अलग अलग दर्शन पढ़ा और षट दर्शन पढ़ा। What I had studied in my college, till my college, and when I went to become a yoga teacher, all their studies were useless because that is an art. Okay, so likewise, economics means ecological dynamics. When you understand that this nature is made by God, and that nature is what? ऐसे तो सर हमने भी पढ़ाई करी, घर में किचन तो कर रहे, क्या फायदा? हाँ, बधाई हो, ताली बजाओ। अभी क्यों ताली बजा रहे? जरा जोर से ताली। भाई मतलब अब ताली क्यों बजाया बता रहा हूँ। किचन में आप लोग हम लोग आप ये समझ लो जितनी पढ़ी लिखी माँ होगी बच्चा उतना होनहार होगा। अब आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा गुरुकुल सबसे बड़ा गुरुकुल है घर, जहाँ माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं। Who is the biggest guru? Father and mother, the parents. Am I correct? The biggest. She is telling that I am only a homemaker. That is, I studied so many things, graduation, and only I am now working in the home. So, do you all agree that the mother is highest guru for a child? First guru. पहला गुरु माता पिता, फिर आचार्य, फिर तो सदगुरु। अगर वो मिल गया तो सबको मिलता नहीं बाबा, सदगुरु की तो कृपा होती है तो मिलता है ना। मुझे मिल गया तो मैं तो वैसे चल दिया है ना, तो उसकी इच्छा से ही वो मिलता है। लेकिन माता पिता का तो पूरा नहीं कर सकते आप। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, गुरु ऋण। The loan or the works, the contribution which the mother, father, and the teacher, any teacher, as well as the guru, the spiritual guru, spiritual master, we cannot fulfill that contribution. Can we? Can we fulfill what? Can we repay what my mother has done for me? No. Can we do? Can we repay what my father has done for me? Can we repay? Can we repay? No. Good. Very good. हम लोग अपनी माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते, आचार्य का भी नहीं चुका सकते। मैं आचार्य बन के गया अपने स्कूल में करीब 30 साल बाद, सैनिक स्कूल 25 साल बाद हमारी गोल्डन जुबली हो रही थी। सिल्वर जुबली का तो मैं ही स्कूल कैप्टन था। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा, तो सैनिक स्कूल तिलैया, वहाँ हमारा जब गोल्डन जुबली हो रहा था तो बहुत सारे ब्रिगेडियर्स, कर्नल और लेफ्टिनेंट जनरल और हमारे साथ मेरा ही बिल्कुल मैं डिफरेंट था। सब लोग एकदम बिल्कुल कुछ ना कुछ थे और मैं कुछ नहीं था, क्योंकि योगा टीचर तो बहुत होते हैं। तो हमने वहाँ जाके अपनी जो हमारे जो सीनियर टीचर थे उनका हमने चरण स्पर्श किया। तो और मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो लोग मेरे से उम्र में ज़्यादा थे, लेकिन वो सैनिक स्कूल के थे, तो वो हमारे को प्रणाम कर रहे थे। बोले अरे आप तो कुछ भी हो तो आप गुरु हो। हम बोले नहीं, लेकिन ये जो गुरु हैं, तो आप ये सोचिए कि जो रिलेशन है कि जो आप कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन आपके टीचर जो आपको पढ़ाए हैं उनसे आप बड़े नहीं हो सकते। Am I correct? Can we become big than our teachers who have taught us? Even if I become a very big man, we cannot. ये जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस से और एक ऊपर की हम बात करने जा रहे हैं, वो है गुरु का। The Guru means who has made this nature, made this universe, and that Guru means God. He has made this nature known as the 5 elements controller. Bhumi, that is earth. Okay, Bhagavan. Have you heard of this name, Bhagavan? Bhagavan. Have you heard this word, Bhagavan? Bhagavan. You know what is God? God you know. आप लोग God जानते हैं?
गॉड जानते हैं? सब लोग जानते हैं गॉड? हम तो- आप गॉड जानते हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो गॉड नहीं जानते? गॉड तो जानते हैं। You know God. डेरिवेशन नहीं जाना है। गॉड G for something. G for something, okay. G for I don't know. O for and D. G for good morning भी तो होता है। G for good morning. Okay, G for guess. Anyone? Very good. G for J for generator. Generator. अच्छा समझ गया। Generator means Brahma. This is Brahma. Okay. O for नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं करता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेटर। ऑपरेट। O for ऑपरेटर, विष्णु। ये तो पूरा ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेटर, दैट इज विष्णु। एंड डी फॉर विष्णु आज। अरे ये तो एकदम मस्त, श्री जी से बच के रहना बे बाबा। Destroyer. This is Mahesh. Okay. So generator, operator, destroyer is okay. God. ठीक है. And what is Bhagwan? Bhagwan. B-H-A-Bha is Bhumi, earth. G, Gagan means sky. Okay, you see sky. Okay. Va, Vayu, air. Okay, air is sky, earth. Okay, you can see this board. Yeah. समझ में आ रहा है ना? A. Okay. A is Agni and Na, okay, is near is water, fire and water. So आपको भगवान का फुल फॉर्म पता था क्या? आपको पहले तो आप यहाँ सुने हो ना, यहाँ पे यहीं सुने। नहीं पता था, इस तरह से नहीं। अच्छा, भ भूमि ग गगन मैंने भी कहीं पढ़ा है। भ भूमि ग गगन भ वायु आ अग्नि न नीर जल। The five elements of this nature, the five elements of this nature, and the five means elements of our body. Okay, this place is earth, this is water, this is fire, this is air, and this is sky. Here, tailbone, जहाँ हमारा रीढ़ का अंत होता है, वहाँ पर पृथ्वी तत्व का स्थान। This is earth. Okay, the tailbone, earth. Okay, you can see tailbone. Urinary point, by natural, वहाँ पर तो जल है ही। हमारे यूरिन का जो अंग है और जो हमारा वीर्य और रज, जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो बनता है, जो प्रजनन के लिए सेक्सुअल फ्लूइड, वो भी लिक्विड है ना? ओके, उसी मीडियम लिक्विड है। द मीडियम ऑफ द सेक्सुअल फ्लूइड, दैट इज sperm and ovum, all is the medium in which it flows, is also liquid, and urine is also liquid. So at the urinary point, this navel point, भोजन पचाने के लिए अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? So this is fire. You need fire for digestion, and this is your oxygen is what? Air. This is air. This is what? Sky. आकाश शब्द, जो शब्द है वो ब्रह्म में, यूनिवर्स में। कहते हैं ना कि अगर आपको भगवान समझना है तो आपको शब्द समझना होगा। शब्द कहाँ है? एक अक्षर दो अक्षर मिलकर शब्द। एक अक्षर का तो शब्द नहीं होता, शब्द के लिए कम से कम दो अक्षर चाहिए, है ना? जैसे अ या आ, ये शब्द नहीं, ये दो मिला तो शब्द हुआ। तो शब्द 2, 3, 4 मिल जाता है तो शब्द। और वो शब्द में अगर
किसी गुरु ने शक्ति दे दिया तो उसको हम मंत्र कहते हैं। ठीक है, शब्द में ऊर्जा दे दिया, है ना, वैसे शब्द जो कहते हैं ना, तो वो शब्द मंत्र है। कब? जब एनर्जी दे। The two letters, that is like this is ba, ga, a, all these are letters, a, like all these consonants and vowels, a, e, I, o, u, okay, likewise a, e, u, a, o, anga, okay. हमारी संस्कृत कितनी रिच है? 50 और 50 स्वर और व्यंजन हैं और 50 अक्षर हैं, और जो स्वर और व्यंजन 50 अक्षर हैं और 50 वृत्तियां हैं। ओके, ये कितना है? 4 मूलाधार चक्र, 4 वृत्ति, 4 प्रोपेंसिटीज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी भी अक्षर है। आपको हम एक और पीपीटी या कुछ दिखा देंगे नोट्स, जिसमें हर चक्र के बीज मंत्र का, ये सॉरी वृत्ति का अक्षर है। एवरी दिस यू सी, धर्म मीन्स psycho spiritual longing, that is you long for God, you want to realize God, that is dharma। सब लोग जानते हैं धर्म और रिलीजन एक है कि अलग अलग है? Okay, Mr. Merrick, is it dharma and religion one or same? You know what is dharma? No. अलग कैसे होगा सर? अलग आपके हिसाब से धर्म और रिलीजन एक है कि अलग है? अब हम तो ये समझेंगे कि हिंदू धर्म और हमारा हिंदू पूजा वो एक ही रिलीजन में आता है, मेरे को तो एक ही समझ आता है। आप बताइए। नहीं, हम कह रहे हैं धर्म और रिलीजन, रिलीजन और धर्म एक ही चीज है कि अलग अलग? दोनों एक है। अलग है सर। रिलीजन अलग हो सकता है, अलग हो। धर्म तो एक ही है जिसको सनातन कहते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, ये दुनिया में स्थापित हो रहा है धीरे धीरे। बताइए ना, वही तो समझ। धर्म सिर्फ एक है, धर्म होता है जिसमें ईश्वर और ईश्वर के संतान दोनों एक ही सत्ता है, यह समझाने वाली जो बात है वह एक ही धर्म, और उसको समझाने के लिए पंथ बनते हैं जिसको आप रिलीजन कहते हैं। रिलीजन पंथ होता है, संप्रदाय, ठीक है। रिलीजन इज नॉट सिनोनिमस टू धर्म। अब धर्म के लिए आपको गीता पढ़ना पड़ेगा। धर्म समझ, धर्म गीता के अनुसार यद धारते अस धर्म धृति क्षमा दमस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम दशकम धर्म लक्षण। धर्म, धार्मिक होने के 10 लक्षण हैं। धृति धैर्य, क्षमा फॉरगिवनेस, ओके, पेशेंस फॉरगिवनेस, क्षमा, धृति क्षमा, दमा नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। हर रिलीजन में यह सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलीजन पंथ है। मनुष्य का धर्म एक ही है, वह सनातन यानी भागवत धर्म। भागवत मीन्स आपका हमारा सबका धर्म। ये बताइए, ईश्वर प्राप्ति है या नहीं? ईश्वर प्राप्ति है या नहीं? दीदी यहां बैठ जाओ ऊपर। ईश्वर प्राप्ति है या नहीं? एवरीबडी इज, धर्म इज टू रियलाइज गॉड, and different path to realize God is religion. Different path to realize God is religion. Okay? Are you understanding, Marek? Little. Don't worry. Okay. You can see the after this recording. It's for me very difficult. No issues. I'm trying to correlate with this. Later you can see, and you all this I'll tell ChatGPT to translate for you in Polish. Okay. और AI will do that. Okay. अब आप ये सोचिए, धर्म, अब यहीं पर जो उस बच्चे ने बोला, इकोनॉमिक्स इज साइंस, ये समझना है। अर्थ, ओके, धर्म मीन्स द क्वालिटी बाय विच यू आर नोन एज ह्यूमंस। आर यू अ ह्यूमन? आप लोग किसी को डाउट है कि हम ह्यूमन नहीं है? एनीवन डाउट? हैविंग डाउट? डू यू हैव अ डाउट दैट आई एम नॉट ह्यूमन, आई एम एनिमल? एनीबॉडी? किसी को है डाउट कि मैं एनिमल हूं? तो एक श्लोक बोलते हैं,
आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य वेद पशु नारणम धर्मो ही तेषां विशेषो धर्मेणा पशु भी समाना। आहार खाना खाना, पशु भी खाता हम भी खाते हैं। सोचो थोड़ा, आज फूड, निद्रा स्लीप, भय फियर, है ना, मैथुन सहवास, स्त्री और पुरुष का सहवास या नर और मादा का मिलन, ये सब करते हैं ना। पशु भी करता, मनुष्य भी करता है। फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स मीन्स फूड, sleep, fear and sex means mating or the male-female mating. Fear, you know fear, what is fear, okay? And then sleep, okay? And food is both humans as well as animals, okay? Correct? So what is difference? Man means minded animal. Yeah, man or woman दोनों है, okay? Man, one who is having the control of their mind is man, and human is highly useful minded animal, one who is useful for everything, means भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। एसी बंद हो गई है ना, वो अभी नहीं ब्लिंक कर रहा। आपको फैन चाहिए किसी को? कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल 5 मिनट और हो जाएगा। हाँ, वो अपने से ऑन नहीं होगा, शुद्ध बना। हाँ, सब जादू है जीवा में। ओके, तो इसी थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो फैन चला दो, ठंडा लगेगा। कैन यू हेल्प प्लीज फैन ऑन करने में? और जब वो एसी ब्लिंक हो जाए तो ये फर्स्ट स्विच बेटा, थैंक यू। ओके, तो ये धीरे ही चलेगा, है ना, आपको ठंडा लगेगा, इधर आ जाएगा। ओके, तो minded animal. So that is why this is what is dharma, arth, काम, मोक्ष। धर्म, आप लोग धर्म पर बहुत ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस पे अपने से समझिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वेद में लिखा है, इसलिए मैं बोल कि धर्म दो नहीं होता और रिलीजन धर्म नहीं होता। रिलीजन धर्म के बारे में बताने का रास्ता है। जो पंथ है वह धर्म को ही बताता है, और खास करके जो हमारे हिंदू धर्म से निकला, जैसे जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब एक्चुअली हिंदू धर्म से पूरा मिलता है करीब करीब। आप देखेंगे उनके लोगों को, है ना। तो अगर आप एक फैक्ट बता देता हूँ, आप लोग शायद इसको समझते होंगे कि अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते और ये 9 गुरु नहीं होते तो हिंदू धर्म खत्म हो जाता। इस देश से खत्म किया, दुनिया से खत्म। आप लोग मालूम होगा क्या कहानियां सब होता है। आज उनके कारण ये उसकी रक्षा हुई। और फिर बाद में आदि शंकराचार्य ने फिर घूम करके ये जो अलगाव हो गया था ना जातिवाद का, उसका जो ब्राह्मणवाद, जिसमें जाति छोटा बड़ा इसका झगड़ा था, जिसके कारण जबरदस्ती कन्वर्जन्स जो होते थे तो हमारी शक्ति नहीं होती। जो इस्लाम का कन्वर्जन्स, बहुत पुरानी कहानी आपको सब पता होगा, ठीक है। So that is why you know when Islam came in India, okay, whatever religion you belong to, I don't know, and that is not important. What is important is that when Islam came to India, the religion was Hinduism, okay, and that was called as Vedic Sanatan, okay. आपको शायद मालूम होगा कि उसको सब लोग वैदिक सनातन कहते हैं, okay. अब now that very time one religion known as Sikh, कब थे गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ? कितने साल? 500 साल? 1600 मतलब 400-500 साल, 500 साल, हाँ। और आदि शंकराचार्य करीब 1000 साल। मतलब आदि शंकराचार्य ने बहुत काम कर दिया था। इसके बाद भी जातिवाद नहीं खत्म हुआ, हिंदू में ही कई भाग। So you know there was casteism, differences of different caste. That is one is Brahmin, one is Kshatriya, one is laborer. So that different caste. One who is fighter is a different caste. So that was according to the quality of the mind. आपके मन के अनुसार था, लेकिन वह differences हो गए। आज भी वैसे होता है। अभी भी
वृंदावन में बहुत गुरुकुल हैं, बहुत कम ही गुरुकुल मिलेगा जहां पर नॉन ब्राह्मण का बच्चा पढ़ सकता है। जो बच्चा, मैं गया वहां तो मेरे से पूछा कि आपके रिलीजन, आपका जाति क्या है? तो मैंने बोला कि मैं दीक्षित ब्राह्मण हूं, मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे बनारस में आचार्य दीक्षा में ब्राह्मण की दीक्षा मिली। तो हम बोले मैं दीक्षित ब्राह्मण हूँ, क्योंकि हम जब शास्त्रार्थ कर रहे थे तो ब्रह्म की जो बातें हैं उनको लगा मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरे जो पहनावे हैं उससे भी उनको लगा। लेकिन हमने कहा कि मैं यहाँ, आप मुझे ब्राह्मण मानते हो, नहीं मानते हो तो शास्त्रार्थ कर लो, तो मान ली। लेकिन हमने कहा कि मेरा दूसरा मिशन है कि हम यहाँ पर दलित बच्चे अगर ब्रह्म ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो हम उनको भी ब्राह्मण बनाएंगे। तो बोले नहीं, आप नहीं कर सकते, हमें छोड़ निकाल, मतलब मना कर दिया उस गुरुकुल में जहाँ मुझे बुलाया। So in India, a person who is born to a Brahmin is a caste who doing priest work. Okay, priest. If their child is working as a goes to army, so they are Brahmin. Okay, and suppose a person of a fighting quality or a business quality, that is, if they want to study the scriptures, then they are not allowed. I mean, they are not said to be a Brahmin. This is a conflict. आपको पता होगा कि एक कुछ दलितों को मोदी जी के ये में उनको ब्राह्मण पंडित का दीक्षा मिला उज्जैन में, महाकाल के ये में, तो उसका बहुत विरोध हुआ ब्राह्मण समाज में। और महिलाओं ने जब विरोध किया कि हम भी यज्ञ पवित्र कराएंगे, आप लोगों में से अगर बाई कास्ट जो ब्राह्मण होंगे आप इसको समझ सकते हैं कि महिलाओं को यज्ञ पवित्र के लिए परमिशन नहीं है, वो पहनती, कहीं कहीं है वो पहनते। उज्जैन की जो माताएं हैं वो लोग ने ये किया और वो पहनते हैं। तो ये तो होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है। तो एक्चुअली द स्क्रिप्चर सेज दैट एवरीबडी इज इक्वल, सो दिस इज धर्म। धर्म मीन्स जो मैं कह रहा हूँ, आप लोग भगवत गीता में वो पढ़ लीजिएगा कि जहाँ गीता कहता है कि सब एक है। ओके, नाउ विद दिस धर्म यू डू एनी वर्क, है ना, एनी वर्क। आप इस धर्म के साथ अगर कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आपका क्या होगा, जो काम करेंगे और उस काम से जो आपका व्यवस्था बनेगा, सिस्टम चलेगा, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स मीन्स व्हेन यू रन द सिस्टम as per the system given by the God, given by the nature, because the science is, there is two parts of the science. One is physical science, second is intuitional science. Physical science तो सब देखता है, हवा धूप पानी सब दिख रहा है जो हम बोले, लेकिन इसके बाद भी जो हमने सबसे पहला सवाल किया था आत्मा का, वह आत्मा क्या दिखता है? आपने जो बोला नहीं दिखता लेकिन होता है। Body is seen. This body is seen, which is here. Okay, and this body is having the endocrine gland. You see the endocrine gland here. You see the gland. Okay, and all this gland is seen here. हम देख सकते हैं ना अपने शरीर में, मतलब ठीक है, अभी हमको ऐसे नहीं दिख रहा। थायराइड तो समझ में आता, everybody can understand thyroid. Okay. Thyroid gland. We know this is here we have thymus gland. हम जानते हैं, पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। आत्मा दिखता है, मन भी नहीं दिखता। वो मेंटलिस्ट है ना, वो क्या सुहानी करके कुछ है ना, वो मन पढ़ती है, बहुत लोग पढ़ते हैं। हम जिस गुरुजी का बात बता रहे थे कि उन्होंने मन पढ़ा, किसके मन में क्या चल रहा है। ओके, mind can be understood. This is also science, your vibrations, your frequencies, what you are thinking. But your soul, your atma cannot be understood because that is the mind of God. भगवान का मन प्रकृति समझिए। आप भगवान को अगर समझना चाहते हैं प्रकृति समझिए। Now let me go to the okay. ये देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्, सब लोग जानते हैं? हाँ? एक लाइन सब लोग हो जाए एक साथ, स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, इसके बाद नहीं लिखा है जो है ओम भूर्भुवः स्वः महा, स्वः यहाँ महाजन तपः सत्य। ओम भुवः, सॉरी यूरिनरी पॉइंट, स्वः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य। ये 7 levels of the consciousness is the श्लोका of गायत्री। गायत्री मंत्र का 7 लोक है, आप लोग कोई जानते हैं? 7 उसके लेवल्स हैं, जिसको कहते हैं पंचकोशात्मिका जब सप्तकली पुष्प सप्त लोकात्मकम ब्रह्म माना। 5 कोश जो हैं आपके, वो तो आपने देख लिया 5 कोश, है ना? 5 levels of the mind, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश देख लिए। लेकिन 7 levels, that is 7 chakras, is connected to this Gayatri mantra. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सविता means father, सविता means father, वरेण्यम means वरण करना, पूजा करना। भार्गो देवस्य, उनका जो ये पूरे ये सिस्टम है, भार्गव वो जो पात्र है वह देव तुल्य, वह पूरी सृष्टि देवस्य, देव के लिए, वो ईश्वर के लिए, धियो यो नः, उनके लिए पूजा करना, अर्चना करना, और उसमें एक बार स्थापित हो जाना, यही है। अब आप सोचिए ये कितना पावरफुल है। हम आप सब जाप करते हैं, अगर इसका मंत्र जानते हैं तो आप। सो द इकोनॉमिक्स फाइनली इज दैट इसका भूर्भुवः स्वः का मतलब तो बताइए क्या होगा? बोला ना अभी मतलब, हाँ, क्या बताइए? ओम भूर्भुवः स्वः यानी एटसेट्रा। भू मीन्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसका कंट्रोलर पंचमहाभूत से 7 लोग। आप जो बताएंगे वो भाव बताएंगे, हमको पता है। हम शब्दार्थ बता रहे हैं, शब्द का अर्थ हम बता रहे हैं, और हम वेद पढ़ करके बता रहे हैं, ठीक है? तो भू भुवः स्वः, महाजन, तप और सत्य, ये 7 लोग हैं। क्या आप जानते थे 7 लोग? क्या गायत्री मंत्र में स्वामी रामदेव को आप सुन सकते हैं जब वो गायत्री मंत्र का विश्लेषण करते हैं, ओम भू ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्य। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को शुभ कार्य के लिए प्रेरित करे। ये तो भाव जानते हैं ना, वो ये भाव बता रहे हैं, उस भाव, हम इतना ही जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। तो भाव जानते हैं, लेकिन भाव जानते हैं, लेकिन अगर आप ये जान लेंगे कि इसके और हैं, जैसे हनुमान जी के लिए मंत्र है ना, हम विजम गगनम ध्यायेत् ज्ञान त्रिकाल विषयम ऐश्वर्यम अनिमादिकम। हनुमान जी को ईश्वर बोलते हैं, और ईश्वर के गुण क्या है? अनिमा, महिमा, लघिमा, ईशित, वशित, अंतर्जामित, प्रकाम्य और प्रताप। ये 8 भग हैं उनके, 8 गुण हैं ईश्वर के। ईश्वर वही बनता है जिसने अनिमा, हनुमान जी, अनिमा मतलब छोटा, महिमा बड़ा, अनिमा मीन्स टू बिकम स्मॉल, महिमा मीन्स टू बिकम बिग, लघिमा मीन्स टू बिकम लाइट, हल्का, ईशित टू कंट्रोल इन योरसेल्फ, वशित to control whole of the universe, antarjamit to know about everybody's mind, prakamya and pratap to now perform for the good deeds. This is the quality of a god, ईश्वर, और वो हनुमान। अब आप सोचिए यह श्लोक भी वेद में लिखा, लेकिन इसके विश्लेषण के लिए और पढ़ा, और मैं भी कोई ऐसा नहीं कि पूरा वेद पढ़ा, हमने तो आचार्यों से जो सीखा हुआ हमको बता रहे। चलिए अच्छा, हम भी सीख रहे हैं। आप दोनों हाथ उठा देंगे तो पूरा वेद आपके अंदर घुस जाएगा। नहीं। हाँ, बस घुसाना है। हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाई किया, हमने ध्यान और कीर्तन किया, और मुझे ध्यान में जो किताबों में लिखा रहता वो आना शुरू हो गया, और ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं उस आधार पर बता रहा हूँ कि यह जैसे ही श्लोक हमने स्वामी रामदेव से पहली बार सुना, ओम भू
ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्य। ये 7 लोग, 7 levels of the consciousness। ब्रह्म मन, इसको ब्रह्म का मन कहते हैं। गायत्री मंत्र का जो ये शब्द है, एक शब्द, ये ब्रह्म का मंत्र है। और इसके साथ इसको हम पिता कहते हैं। वह पिता है, पिता तुल्य, वह शिव, कृष्ण, राम, ब्रह्म के रूप में वह, ये ब्रह्म का मन। The consciousness in the form of God is what is this levels of the consciousness here in the Panchbhutas, which is the base in the form of the 4 Purushartha, dharma, artha, काम, मोक्ष। धर्म आपका अगर ठीक रहेगा, आपको मैं कोई गारंटी देता हूं कि अगर आप जिस दिन से आप 100% सरेंडर कर देंगे कि मेरी जो बीमारी है वो भगवान के ऊपर है, मेरे जो शरीर में तकलीफ है वो भगवान के ऊपर है, मेरे को दर्द नहीं, मुझे बीमारी नहीं, बीमारी मेरे शरीर को, I don't have any problem, the problem is with my body, I am not sick, my body is sick। आप उस दिन से ठीक हो। मेरा इतना प्रवचन देने का एक ही कारण है कि हम आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं यही से समाप्त करूंगा कि आपका धर्म आधारित अगर अर्थ और काम होगा, मीन्स योर इकोनॉमिक्स, मतलब आप जो भी पैसा कमाते हैं, वट एवर मनी यू गेट, इफ यू आर हैविंग धर्म और दैट इज द क्वालिटी टू अटेन गॉड, अगर आप भगवान की व्यवस्था से आप चलते हैं तो आप जो भी पैसे कमाएंगे वह आपको कल्याण की भावना के साथ मिलेगा। ओके, एंड द काम, जो आपके फिजिकल लॉन्गिंग है, जो शरीर है, वह आपकी ईश्वर के साथ। आप जब भी सुबह उठते हैं और हमें धर्म का पता है तो हम मानेंगे कि शरीर हमारा मंदिर है, तो बिना ब्रश किए, बिना स्नान किए हम भोजन नहीं करते। इतना तो सबको पता है, लेकिन आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो बिना ये 2 चाय तो पीते ही, बहुत लोग बिना ब्रश के चाय भी पीते हैं, बहुत कॉमन है। डू यू नो एनीवन हु ड्रिंक्स टी विदाउट ब्रशिंग टी, without brushing their teeth? You know anyone? Everybody cleans the mouth and then takes the tea? Okay, you are not sure, but I will tell you, so many people, so many of my overseas friends, okay, from different countries, they came to learn yoga, and they were, in the morning they were taking tea without brushing, and somebody was taking biscuits and bread also, no brush. I said, why don't you brush? And no motion. Well, I am hungry. अब वहां से शुरू करना पड़ता है। आप सोचो, ये पशु है ना, और हमारे कुछ ऐसे तेज लोग हैं, बोलते यार शेर थोड़ी मुंह धोता है ऐसे करके खा लेते। सो ये धर्म का पहला कि आप बिना स्नान किए आप आहार नहीं ग्रहण करते। नाउ धर्म ऑल्सो टीचेस दैट यू शुड नॉट टेक एसिडिक फूड, और जो भोजन से आपका पेट में गैस हो जाए वो भी नहीं खाना। मतलब सुबह सुबह चाय बिस्किट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। खा लेते हैं तो मतलब आप धर्म नहीं जानते। सीधा समझ कि आप अगर धर्म जानते हैं तो आप चाय बिस्किट नहीं खाते। आप अगर पराठे खाते हैं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सुबह सुबह नाश्ते में पराठे खाना चाहिए? कभी कभी खा ले, कभी कभी आधार्मिक हो सकते तो ये धर्म का मतलब आपके शरीर का जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, the 5 elements of your body, the earth, water, air and sky, if any food which is affecting that, you should not eat. Affecting your water element, आपने ऐसा सुबह सुबह भोजन ले लिया जो आपकी अग्नि बढ़ा दिया। सुबह सुबह आपके अग्नि प्रधान नहीं है। सुबह में क्या प्रधान है, कोई गेस कर सकता है? नहीं। वायु, शाम जल, सुबह में जल। जल किसमें है? फल में। और जल सुबह उठते साथ, as soon as you wake up in the morning, you should take water. If you are feeling dryness, सुबह उठते साथ किनके मुंह में सूखा लगता है, मुंह लगता है सूख रहा। सुबह उठते हैं मुंह सूख रहा है, ऐसा लगता है। When you wake up, sometimes those people who have acidity and arthritis, okay, those people get dryness
in the morning when they wake up. So they should drink some water. सबसे पहले पानी पी। अगर आप चाय पी लेंगे तो क्या हो गया? आपकी और ड्राइनेस बढ़ जाएगी ना, एसिड। If you take tea as soon as you wake up and you are having dryness in the mouth, okay, you are feeling very dry here when you wake up. So you drink water or you tea. Don't take tea. Likewise, अब है पराठे में क्या होता? अग्नि प्रधान है ना, और दलिया में क्या होता? नहीं, दोनों प्रोटीन भी होता है, जल भी होता है। मतलब थोड़ा जल पीने के बाद क्या सेब वगैरह कुछ खा सकते हैं? फ्रूट तब कुछ खाएं? हम तो बोले ही नहीं कि आप नहीं खाइए, हम तो उसमें गए ही नहीं ना। वही तो हम पूछ रहे हैं। सेब का हम बात ही नहीं कर, हम तो पराठे का पूछ रहे हैं। नहीं, आप तो बताइए ना कि हम पूछ रहे हैं पराठे क्यों नहीं खाना, आधार में क्यों है पराठा खाना? अरे पराठा भारी होता है। पराठा खाना आधार में क्यों है? तो भैया इसको बड़े मत लीजिएगा, नहीं तो लोग सब पंडित लोग हमको पकड़ने लगेंगे, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही। पराठा खाना धर्म का मतलब शरीर के लिए है। आपके शरीर का धर्म जो है वह सुबह में, शरीर का धर्म क्या है? सुबह में जल प्रकृति, पराठे में नहीं। ओके, सो पराठे सुबह सुबह जल था तो किसमें है? जो आपने बोला, फल में और पानी। पानी आपने पिया, पेट साफ किया, you took water, clean your stomach, motion, bowel motion, then you drink some fruits you take, some fruits, then you take or more liquid thing like दलिया जो easily बचेगा। फिर ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट पानी में भिगाया हुआ है तो ले सकते, ऐसे पानी पीने के बाद। अगर पित्त बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा एसिड है तो नहीं लेना। फिर आप एक ही चीज ले सकते हैं ड्राई फ्रूट में, दो चीज, मुनक्का और अंजीर, उसमें जल रहता है। ड्राई फ्रूट मींस ड्राई विदाउट वाटर, बट यू सोक इट with water, then you get the water. उसमें पानी means water. The dry fruit becomes dry because the water is gone, but you soak it overnight, तो उसमें पानी आया। ओके, अच्छा, आप लोग अगर दलिया बनाते हैं, चलते चलते दलिया की बात कर लें। दलिया अगर मिलेट्स भी बनाते हैं, मिलेट्स, पहला मिलेट तो न्यूट्रल मिलेट में जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, उसके बाद कोदो, कंगनी, कुटकी, ये सब है, ठीक है। तो उसको आप लोग दलिया कैसे बनाना हमारी दीदी आपको बता देंगे, इसके मास्टर रही हैं। लेकिन दलिया बनाना तो रात भर भिगाना, ये तो सही है। उसके बाद उसका फर्मेंटेशन अगर हो गया तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। दही जैसे होता है ना, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। किसी भी चीज को आप फर्मेंट करेंगे, जैसे आप इडली करते हैं ना, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो फर्मेंट करते हैं। They are fermented, okay, where yeast is developed is having vitamin B complex. उसकी कितनी देर रखनी है वो आप समझ लेंगे। अगर करते हैं तो वह सुपाच्य होता है, और उसका फिर आप दलिया बनाते हैं, तो वह दलिया जल्दी पके, और आप इससे निकाले, है ना, पेटी से निकाले और सीधे डाल दिए तो बाबा, प्रेशर कुकर भी ठीक से नहीं पका हुआ है ना। ओके, एंड डोंट यूज प्रेशर कुकर। किसके घर में प्रेशर कुकर? अरे हाथ उठाइए ना, देखते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, चिंता मत करो। किसके पास नहीं है? सबके घर में प्रेशर कुकर। किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं, सबके घर में फ्रिज है, किसके पास नहीं? सबके पास टीवी है। ओके, तो प्रेशर कुकर, फ्रिज रहने दीजिए, लेकिन फ्रिज में खाना रख करके नहीं खाना। Do you know we should not eat food keeping in the refrigerator? We should cook and eat immediately. Cook and eat. Yes, cook and eat. Don't refrigerate. Yeah. Okay? It is not good for health. Only you can keep milk and curd. And some fruits, vegetables, which you have not taken, you can take it in one day later. लेकिन बाहर वाला जैसे आप फ्रिज में डालेंगे उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरनी शुरू हो जाती है, और वो फ्रेश दिखता है, फ्रेश नहीं होता, मर जाता है फ्रिज में रखते ही। सब्जी आप डाल दिए, 6 दिन तक सब्जी खा रहे हैं, ओके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। और प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं, गल जाता है। क्यों? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में उसकी जो एटम्स होते हैं, उसके द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड इन द प्रेशर कुकर ब्रेक्स,
ओके, और वो टूट जाता है, बॉन्डिंग नहीं होती, दोस्ती नहीं बनती है। दाल और चावल को पकाने से क्या होता है? दाल और चावल एक साथ पकाते हैं तो क्या होता है? खिचड़ी। तो दाल और चावल है लड़का और लड़की, शादी हो गई तो हो गया खिचड़ी, उसमें सब्जियां डाल दिए तो हो गए बाल बच्चे, ये हो गया पूरा परिवार। तो इसीलिए पूरा परिवार एक साथ रहेगा तो आपको भोजन बचेगा। खिचड़ी कब अच्छा बनेगा? जब आप कम आंच में आप उसको बिना ढक्कन लगाए आप भोजन पकाएंगे, ऑक्सीजन लेते हुए धीरे धीरे पकाइएगा, उस खिचड़ी से आप सब बीमारी की यहाँ भी नहीं होता। सॉरी, राधे राधे, थैंक यू, बहुत अच्छी बात बताई। ओके। सो चलते चलते आप वो चालू किए थे दादा ये बताइए। विश्वनाथ जी, एक गीत सुना दीजिए जो आप करियर में लगाया हुआ है। हमें कोई गीत लगाया नहीं, अरे तो स्टार्ट कर लीजिए। कोई भजन वाले से का है ना। अरे तो कौन गाते अब भजन तो हैं? आता थैंक यू। भजन आता ही है।